All right. So recurring decimal fractions we are going to study today, and it is saying same number is repeating in a decimal. So you can see that 0.177 is repeating. So you have to denote that number as 7 without dot. Like for example, if in this case, if the examiner is saying that 2.34 and 4 is recurring, so you have to write that 2.34 repeating. Is this clear or not? Yes or no? Yes, sir. सर ये Look at डॉट का मतलब है कि this is repeating. यस अब जरा देखें प्लीज अगर मैं एग्जांपल इफ आई राइट द सेम एग्जांपल लाइक दिस वे दैट 2.34 and there are two dots and one on 3 and one on 4, so it means that you have to write 2.34343434 like this. Is this clear or not? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. For example, let me write here this way that 0.123 repeating. So you can write that you will get this in the calculator as 0.123 123 123. It means that three consecutive digits are repeating. Is this clear or not? Any problem, Ayla? Zaria? Beta, Zoom user is whose ID? No, sir. Beta, Zoom user किसकी ID है? It's Misha. Okay. Okay, so now you need to understand that these are recurring decimal fractions, and this is the new thing in the syllabus of O levels and IGCSE. So please try to understand this that this concept was previously not there. Okay, now we need to understand that, like for example, I know that very well. I know that very well that converting decimal into fraction is a very piece of cake. Agree or not? That converting decimals into fractions is easy. I know that. Like, for example, the examiner is saying that convert 0.12 in a fraction, so it would be 12 by 100. Understood or not? For example, the decimal is 0.1, so you have to write 1 by 10. Is this clear to all of you? Is this clear to all of Yes, you? sir. Now Yes, remember sir. one thing. Now remember one thing. All those students who are struggling in this thing that how to convert this decimal into a fraction. So just remember one thing, just drag a line, make a fraction, write 1 below the decimal and write the number of zeros or how many digits you have after the decimal. I have 2 and 3. It means that I have two zeros. So I have to write 100. So 1.23, it means that it is 123 by 100. Understood everybody or not? It's easy thing. Agree? Yes, sir. Now we are going to understand that how to converting recurring decimals is tricky and do follow some steps. All right, so now please pay attention, all of you. You can see that converting recurring decimal is tricky and do follow some steps. Like for example, might be there is a chance that you're learning this for the very first time. So please pay attention. I'm going to open a calculator in front of you, so that you can easily grab the concept, and you have this plus edge in that as well. Okay, so please try to understand that. For example, the question demand of the que- for example the demand of the question is that convert, right right Alaikum salam. 0. Walaikum assalam. Right, 0.17 recurring as a fraction. You get this question in Cambridge. How to answer this question? There are few steps. You have to remember those. Okay. So now look at the question first of all. Step number one. Step one. Step one is let x equals 0.1777 repeating. Is this clear or not? Is this clear or not? Step 2. Yes, Step sir. 2 is Clear. सर क्या पढ़े? recurring decimals पढ़ रहे हैं बेटा. अच्छा. See
See how many digits are repeating. See how many digits are repeating. So Yamna, what do you think? How many digits are repeating? In this case, how many digits are repeating? Sir, one. Only one digit is repeating. Only one digit is repeating. So multiply, बेटा मैं हर एक चीज देखो स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि एक सैंपल बन जाए. Multiply both sides by 10 because one digit is repeating. So this is now my equation number 1. So I'm multiplying both the sides with a 10. So it would be 10x equals 1.7777 repeating. Is this clear or not? Yes or no? No, sir. I came a little late in class. Okay, so Afreen, please pay attention. The examiner is saying write 0.17 as a fraction. 0.17 with a dot means you can see a dot on 7. It means that this 7 is repeating. Any problem? No. I wrote 3 sevens intentionally, okay? So that the idea is clear that the 7 is repeating, okay? सर हम अपनी मर्जी से रिपीट कर सकते हैं मतलब 4 हो 5. आप 5 दफा लिख लो 7, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बस जस्ट ये शो करना है कि that 7 is repeating. Is this clear? जी सर. Now you can see that let the first step is let x is equals to 0.1777. Any problem? Mm-hmm. Step No, 2 sir. is steps 2 is see how many digits are repeating. Yamna said that in this case, sir, only one digit is repeated. Agree? Yes. So if one digit is repeating, multiply both sides by 10. If two digits are repeating, multiply both sides by 100. And if three digits are repeating, multiply both sides by 1000. Agree? Mm-hmm. So we multiplied x with 10, so we got 10x. And whenever we multiply 0.1777 with 10, we know that it would be 1.777. Any problem? No, sir. All right. Now you have two equations. Now you have to do what? You have to write the first equation, subtract equation 1 from 2. So beta equation number 1 from 2. तो 2 पहले लिखो. 10x is equals to 1.7777. 4 sevens लिखे हैं क्योंकि ऊपर भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखे हुए हैं. ठीक है? Okay. And x is equals to equation number 1 is 0.1777. According to the math and English, वदान आपने इसको माइनस करना है. एग्री? 10x minus x is 9x. ठीक Right, है सर. वदान? Right, वदान? अब right side पे ठीक है सर. yesterday I told you guys whenever you are subtracting decimals, so write decimal first. Agree? 7 minus 7 is 0. 7 minus 7 is 0. 7 minus 7 is 0. 7 minus 1 is 6. And 1 minus 0 is 1. It means that, Afreen, I got the answer something like 9x equals 1.6. Agree, Afreen? Yeah. Now I want to find out Laluna x here. So divide both sides by 9. Do you agree? Divide both sides by 9. So it would be x equals 1.6 divided by 9. Agree? Now, Vadan, in math, we call this fraction as a vulgar decimal fraction. Okay? Vulgar decimal fraction, and we cannot leave the answer like that. So you have to convert this decimal into a whole number. Vadan, you can see that the numerator has only one decimal place. Agree? Yes sir. It can be So 16 by 10. very good. So it would be 1.6 divided by 9. I will be multiplying the numerator and the denominator by 10. Is this clear or not? So my answer is 16 divided by 90. Can I simplify 16 divided by 90 in table 2? All of you?
Yes, sir. Mujgan? Yes, Yes, I can. So it would be half of 16 is 8. 8 by 45 is the final answer. Agree? सर Yes. सर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। बेटा ये ऊपर 1.6 वन डेसिमल प्लेस था ना, मुझे इस वन डेसिमल प्लेस को रिमूव करना था, ठीक है। तो ओके 1.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, लेकिन मैं खाली ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। आई हैव टू बैलेंस थिंग्स इन मैथ्स, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 एट द सेम टाइम। इज दिस क्लियर? यस सर। गॉट इट? So see, I जी got सर। the fraction here, Afreen. I got the fraction here. Look at the calculator on the right side. Fraction 8 by 45. When I press equals to, see, when I press S and D, see, I got the same thing or not? 0.17 repeating or not? Yes or yes, no? sir. 0.1777 काफी और उसके बाद आखिर में 8. All right. Is this clear, everybody, or not? We are going सर to Yes, मेरा sir. practice one सवाल more. है। जी जी बोलें प्लीज। सर आपकी जो इनिशियल वैल्यू है तो वो 0.177 है ना, 37 है। तो हाँ, जब आप आप उसको 5 7 10, लिखो। नहीं नहीं खैर है, पता है वो, मगर जी। जब आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो हम्म 4 7 क्यों बन जाते हैं? देखें 4 7 हम लोगों ने पहली बात तो ये है ना, अगर यहाँ पे एक चीज इनिशियल वैल्यू है ना। हाँ, ये पॉइंट इसने अच्छा अच्छा रेस किया है कि सर आपने ये 4 7 क्यों लिए। खैर वैसे एक बात है कि अगर हम 4 लें 5 लें कोई मसला नहीं करता हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। जरा देखें, इसलिए मसला नहीं किया क्योंकि ये सारे 7 ही थे। एग्री? तो ये 1.77 आ रहा ना, तो अगर इसको मैं इसमें से मैं एक एक 7 इरेज भी कर दूं तो वो बॉदर नहीं करेगा। एग्री और नॉट? ठीक है सर। यस और नो? यस यस। ओके, एक सेकंड एग्जांपल करते हैं, जरा और भी समझ आ जाएगा। सो प्लीज जरा सर फोकस करें और। मैंने तो सर मैंने 1.777 मतलब मैंने सिर्फ 3 7 किए फिर भी मेरा सेम आंसर आया। हाँ आता है, आप दो भी लिखो तो सेम आएगा, ठीक है। मैं भी आपके सामने करता हूँ ना, जरा देखें प्लीज। अब बारी है जरा सीखने की शॉर्टकट। बेटा शॉर्टकट इज, यू कैन सी वन थिंग दैट 1.7 we know that it is 17 by 10. Is this clear or not? Yes or not? यस सर। Now check please. 1.7 repeating. Can you see that? Can you see that everybody or not? जी। So beta, you have to divide this number with 9 now, not 10. So check in the calculator. 17 divided by 9. The answer is 1.889. अच्छा sorry, my bad. My bad, मैंने 1 लिया हुआ है। Let me correct this. 9। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, जरा प्लीज समझ डालें प्लीज। आप ये जरा देखें बेटा, 0.7 रिकरिंग आपको नजर आ रहा है? जी जी जी। 0.7 रिकरिंग नजर आ रहा है आपको? यस सर या। ओके, एक मिनट जरा मुझे दें कि सारे ताकि मैं दोनों एग्जांपल सेम कर लूं। इट्स अ सिंपल एग्जांपल, simple one. Simple one is that 0.7 into fraction is 7 by 10. Is this clear to all of you? जी Okay, now the tricky example is that 0.7 repeating, 0.7 repeating, and this can be in your non-calculator paper, for 1 mark. So remember that 0.7 repeating means 0.777 repeating. Is this clear or not? जी सर। So the shortcut is, as one digit is repeating, so divide by 19. Is this clear or not? So just check. 7 divided by 9. Ramin, check 0.77777 repeating or not? जी सर। All right. So let's check. सर Yeah, beta. सर नहीं समझ आई 9 से क्यों किया। ओके, ये एक शॉर्टकट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ कि पहला ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जीरो एक हमारे पास, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट होता है। तो आप ये देख रहे हो कि सिर्फ इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, जरा सब देखें वदान, इफ आई राइट if I write 0.123 and only 3 is repeating, yes or no? So in जी सर। calculator, I should get 123 by 9. So it should be equals to 0.123, something like that. Agree or not?
but the shortcut will not satisfy here. Shortcut will not satisfy here. Why? The reason is, please check, because the first two digits 1 and 2 is not repeating, right? Check please. 123 divided by 9 equals 41 by 3. See, it is something else. Agree or not, Vadan? Yes sir, yes. But Yamna, please pay attention. If 1, 2, 3, all of them they are repeating. Can you see that, Yamna? Yes, sir. As three digits are repeating, I am going to divide by 3 9s now. 999. Let's check in the calculator that do we get 0.123, 123, 123 or not. Let's check. 123 divided by 999. Check. 0.123, 123, 123 or not. यस सर। सर लेकिन ये Yes नहीं sir. समझ आ रही आप 9 क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपको ये शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, मैं स्टेप पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? और ये शॉर्टकट अभी आपको समझ आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं एक एग्जांपल सर आपके सामने मतलब लिख रहा हूँ। आपके बात का मतलब ये है कि जो सिंपल फ्रैक्शन होता है ना, उसको चेंज करने के लिए हमें उसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रिकी वाला होता है, मतलब रिकरिंग वाला, तो उसे हाँ जी। हमें हमेशा 9, मतलब 10 को हम एज अ 9 डील करेंगे ट्रिकी हाँ, वाले में। लेकिन उसके लिए शर्त ये है ना कि पहला नंबर ही रिपीट हो रहा हो। एग्री? ठीक है सर। वो 1 2 रिपीट नहीं हो रहा था तो उसके उसके ऊपर शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक अच्छा है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक फिर है। सर तो हम जीरो यहाँ, पॉइंट 1 2 3 रिकरिंग, फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये अभी आपके सामने हम करेंगे ना जी, आप जरा गौर तो करें। अच्छा सर। आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? राइट। 0.12 and only 3 is recurring as a fraction. ठीक है? As a fraction. So Saim, you know this, that we had multiple steps for that. Step 1, let x is equals to 0.12333. Any problem? Any problem? No, clear. All right. So now please pay attention. I am going to write this equation a bit below that. And I'm going to write the second step above that. Okay. The second step was, as one number is repeating, as one digit is repeating, one digit is repeating. So I should multiply 10 on both sides or 100? 10. 10. Very good. Multiply by 10 on both sides. Ramin, paying attention? जी सर। तो ये तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? Okay, as one digit is repeating, so multiply by 10 on both sides. So Ramin, if I multiply 10 with x, so it would be 10x. Agree? जी सर। And if I multiply 10 with 0.12333, so it would be 1.2333. Agree or not? Yes or no? जी Now, Afreen, we are going to subtract it. So 10x minus x is 9x. Yes or no? यस सर। डेसिमल अपनी जगह पर आएगा। 3 minus 3 is 0, 3 minus 3 is 0, 3 minus 3 is 0, 3 minus 2 is 1, and 2 minus 1 is 1, and 1 minus 0 is 1. Agree or not? So it means that sine I got 9x is equals to 1.11. Agree? Yes, sir. So divided by both sides, dividing by 9. So it would be x equals 1.11 divided by 9. Yamna, should I multiply with 100 in the numerator or 10 in the numerator to remove the decimal? सर 10। No, 100 अगर 10 सर। से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.1 बन जाएगा. So it should be what? It should be multiplying by 100 in the numerator and in the denominator as well. So it would be 111 divided by 900. 111 divided by 900. So let's check, if we divide 111 by 900, will we get this answer or not? Let's check. Vadan, 111 divided by 900 equals, it's 37 by 300, the simplest form. Press S and D. See, 0.12 is not repeating, but 3 is repeating. Can you see that, everybody, or not?
जी यस सर। सर। इज दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रखा है ये 0.123 है या फिर 111 डिवाइड बाय 900 सही है, लाइक दैट्स द फाइनल आंसर। और हाँ, दैट्स द फाइनल आंसर। और अगर वो कहे ना कि सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो आप वो इजीली सिंप्लीफाई कैलकुलेटर पे भी कर सकोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको विद कैलकुलेटर आएगा, ठीक है। isn't this paper one the calculator allowed नहीं है? बेटा पेपर वन और पेपर टू में, पेपर वन ओ लेवल्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पेपर टू आईजीसीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। और अगर 111 को 900 पे डिवाइड करना भी पड़े ना, तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, टेबल 3 की डिवीजन है, ठीक है। सही है। इज इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? माया, इज दिस क्लियर टू यू? माया, इज दिस क्लियर टू यू? All right. Anyone having any questions? So you can turn on your mic anytime in the class. सर हम लोग शॉर्टकट तब अप्लाई करेंगे जब पहला नंबर ही रिकरिंग हो, Yes. और अगर पहला नंबर रिकरिंग हो बाकी ना हो फिर क्या करें? पहला नंबर रिकरिंग और बाकी ना, पहला नंबर रिकरिंग हो तो बाकी ना हो, ये कैसा हो सकता है? यही बताओ मुझे जरा प्लीज। आखिर मतलब इस तरह हो 0.1 1 रिकरिंग और बाकी 2 3 इस तरह हो, फिर क्या करें? नहीं हो सकता बेटा, 0.1 अगर रिकरिंग, 0.1 अगर आपका रिकरिंग हो गया है तो उसके बाद तो 1 ही आना है, फिर 2 3 तो आ ही नहीं सकता। ओ हाँ। कॉमन सेंस। अच्छा हाँ, समझ आ गई, सॉरी। हाँ ना, क्या कर रही हो? अच्छा, क्वेश्चन सर करते हैं एक एक और। मसला है सर। जी बोलो बेटा। सर 0.123 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1.123 क्यों नहीं आता, 1.23 आता है? कुर्बान जरा देख, 0.123 है ना, इफ आई मल्टीप्लाई जी। विद 10, ठीक है, सो जी तो सर। ऑब्वियसली वो 1.23 आएगा, पॉइंट राइट को जंप लेगा। ये 123 क्यों आए फिर हमारे लगे? अच्छा, वो जो 1 है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये मैं अभी आपको कराता हूँ, आपको ये भी नहीं आता। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 भी नहीं आता, ये भी मैं कराता हूँ अभी। ठीक है ओके, ठीक। राइट 1.123 एंड 23 एज रिपीटिंग, सॉरी एज फ्रैक्शन लिखता हूँ ना, रिपीटिंग क्या लिख रहा हूँ, एज फ्रैक्शन। ओके, मुस्कान, व्हाट इज द स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज, मुस्कान, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Arom, can you hear me? What is the first step? Omar, अस्सलाम वालेकुम, how are you? गुड। माया, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? माया, can you hear me? Arom, can you hear me? सर वी कैन हेयर यू। Yeah, I know that, but I was asking these two students only, Maya and Arom. They are not talking, they are not even chatting, so that is the reason now I was concerned about them. All right. So the first step is, सब बताएं एक one sound पे बताएं जी, what is the first फिर step? एक्स को मल्टीप्लाई विद लेट 10। कर लें, एक्स को लेट करें पहले। X is equal to 1.1232323. Very good. So let x is equals to 1.12323. That's it. 23 is repeating. Should I multiply by what? Multiply by 10 or 100 100? Very 100। good. 100 Good job. Multiply by 100 on both बोथ sides. साइड। So ये हो जाएगा बेटा 100x। सर 100 कैसे? बेटा दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उमर, टू डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वन डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से करो, थ्री डिजिट्स रिपीट रहे हो तो 1000 से करो। सर जी बेटा। अच्छा सर, ये आपने अभी लेट एक्स इक्वल टू 1.2323 लिखा है ना, हम्म। तो ये हम कितनी किधर तक हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं? 2 3 2 3 2 3 2 3 जितना भी हाँ, बस करना। कोशिश करें कि दो नंबर रिपीट हो रहे हो तो एटलीस्ट दो रिपीटेशंस ले लें, ठीक है। ओके। ठीक है, सो ठीक। 100x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर में मिले तो ये काम कैलकुलेटर पे भी हो सकता है। और वदान ज़रा गौर करें, अगर मैं 1.12 के साथ 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। 112.323 हो जाएगा। एग्री? नाउ ये इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखें, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू, नाउ बी केयरफुल, नाउ देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक। एग्री? So the right point below point. Is this clear or not? Yes or no?
सर ये जहाँ आपने लिखा है 100x इज इक्वल टू ये, लेकिन जो जहाँ आपने x लेट किया उसके बाद पॉइंट के बाद तो 6 डिजिट्स है ना। बेटा अभी और मैं आपको बताता हूँ, जरा प्लीज, जरा मुझे जरा लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, ठीक है? आई अच्छा एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट this whole thing below 100x. Is this clear? But we need to follow the discipline of decimal. I am going to write decimal first, then I'm going to write 1, 2, 3, 2, 3 like that. And I should write 1 below before decimal. Now there are no digit here. So intentionally, I am going to add 2, 3 here. Any problem? Any problem, सर समझ Arsalan? नहीं है। जी बेटा, जी यमुना, समझ आई बेटा? नो सर। मेरा बेटा देखो, मेरी बात सुने जरा। पहली बात तो ये है ना कि हमें ये आइडिया तो हमें डेवलप हो चुका है। लेट मी इरेज दिस थिंग, ताकि मैं आपको जरा दोबारा समझा दूं इस चीज को। जरा सब गौर करें बेटा प्लीज। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 112.323। इज दिस क्लियर और नॉट? नाउ आई एम यस गोइंग सर। टू राइट दिस ग्रीन पार्ट बिलो दैट बिकॉज आई नीड टू माइनस इट। एग्री यमुना? यस सर। सो लेफ्ट साइड इज इजी, हम एक्स लिख देंगे। एग्री? राइट साइड पे लिखने से यस पहले you have to start writing from the decimal. You have to remember the rule of decimal, subtraction and addition. Agree? So write decimal first. यस There is one before decimal and there is one after decimal. Then we have to write 2, then we have to write 3. I have to write 2 and 3 intentionally. Agree or not? यस Agree or not? And we all know that in this above fraction is in above decimal as well, this 2 3 is repeating. Agree or not? So I am going to write these 2 3 here intentionally. Any problem? एक्सक्यूज मी सर। Yeah, excused. सर मैंने ये सॉल्व किया है, अगर आप इस पे साथ 2 3 ना भी लिखे ना तब भी ये सॉल्व होता है। बेटा सॉल्व होता है मेरा बेटा, सॉल्व होता है। मैं तो ये नहीं कहता कि सॉल्व नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये डिसिप्लिन जी। सिखा रहा हूँ, क्योंकि इफ यू गेट दिस अच्छा क्वेश्चन अच्छा, इन ठीक नॉन नॉन कैलकुलेटर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट एवरीबॉडी? सर ये आपने ऊपर 2 3 मतलब क्यों दोबारा लिखा है? वो इसलिए लिखा है बेटा मैंने, तो यहाँ पे ये 2 3 अपनी मर्जी से लिखे थे ना, 5। एग्री? यस सर। मैं इसके बाद भी लिख सकता था ना। एग्री और नॉट? यस सर। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूं तो मैं इस 3 को किस में से माइनस करूं? एग्री और नॉट? आई हैव टू माइनस यस दिस 3, तो मैं किस में से माइनस करूं? ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो मैथ्स का डिसिप्लिन कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 3 2 3, तो एक 2 3 और लिख दें इंटेंशनली। एग्री? यस सर। ओके, अब माइनस करें आराम से, पहले पॉइंट लिख लें क्योंकि डेसिमल है। सो 3 माइनस 3 इज 0। बेटा लाइन वाइज चलना है। 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 2 minus 1 is 1. This 1 will come here and this 1 will come here, is equals to 99x. Any problem, Simon? नो सर। All right. So it would be 99x Yamna is equals to 111.2. Agree or not? यस सर। Now divide by 99 on both sides. So x is equals to 111.2 divided by 9. Beta, should I multiply divided by 99? Should I multiply with 10 or 100 in the numerator or denominator? 10 से। Only 10 because there is one decimal place. So multiply by 10, multiply by 10. So it would be 112 triple 112 divided by 990. So Afreen, let's check in the calculator whether we get this thing or not in the calculator. Agree? So सर let's सर check. सर। Yep. सर सॉरी मगर सब्ट्रैक्शन पे थोड़ा सा एक बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Just give me a second, okay? Okay. जब fraction देखें जरा please. I'm going to write 112 divided by 990. Oops. 112 1112 divided by 990 equals 556 divided by 495 is the simplified form of this fraction. Press S and D. See, 1.232323 is repeating. Got it or not? Any problem?
नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो अच्छा सर। बेटा, अब जरा मैं देखें, जरा कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल में मैं थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स के अंदर ये चीज क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है और ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का डिसिप्लिन है ये। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन दैट 1.23 with a repeating 3 is getting minus, agree, from 3.2465, agree. So you have to minus 1.23 minus this thing. So 1.23 would be in the numerator. Do you agree with me, Simon? And यस सर। 3.2465 would be in the lower part. So it would be 3.2465. As Simon, can you see that I do not have anything above 6 and 5? Can you see that? I do not have anything above these two digits. Agree or not? Yeah. But I got an idea here that this 3 is repeating here. So I'm going to write these two threes intentionally. Any problem? No. So that was the thing I was doing above. Agree? Okay. Got it? यस सर। So that's how we do subtraction. Yamna, I hope it's clear now. So point will come first. Now do subtraction. So Yamna, we know that I cannot subtract 5 from 3. So I have to take a carry. So that would be a 2. So 13 minus 5 is 8. 2 minus 6 is impossible. So that would be 2. Now it would be 12. 12 minus 6 is 6. That is 2. 2 minus 4 is impossible. I have to take carry from here. So 12 minus 4 is 8. 1 minus 2 is impossible, so I have to take a carry, so that will become 0. So 11 minus 2 is 9, and this 3 will come here now. Is this clear or not? Yes, sir. Yes or no? Yes. सर Any सर problem? जी 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 वो ओरिजिनल सब्ट्रैक्शन भी कर लेना। जी। बस इस चीज को आप याद रखिए, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझाया, तो उसको मैं नोट से हटा रहा हूँ, ठीक है? नहीं आई एम गोइंग सर। टू राइट अ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन राइट as a fraction, right? As a fraction, जरा वन सर गो वो में ऊपर जवाब देना वाले चाह पार्ट की समझ नहीं है। इस सर पार्ट की। ये 100x वाला है, इस वाली की सिर्फ नहीं है। अच्छा 100x, एक मिनट, ये वाला देखो, ये चीज याद रखें जरा उमर। 2 and 3 was repeating, agree? 2 के ऊपर डॉट है और 3 के ऊपर डॉट है। उमर, कैन यू सी दैट? यस सर, बेटा 100 जब का दो, पता है, इसके बाद वाला। अच्छा जब आपने 100 पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x आपके पास कुछ ये चीज आ गई है। अब ये मुझे बताओ कि आपको इसकी समझ आई है पहले पूरी? इस वाली की नहीं आई। ओके, अभी इस चीज को और जरा क्या आई? अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, कि अगर मैं ऊपर इस x को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 100x बनेगा। एग्री और नॉट? ये तीसरी दफा है मैं समझा रहा हूँ। सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? प्लीज पे अटेंशन। यू कैन सी दैट यस 100x में से अगर x माइनस करूं, तो जब मैंने x इसके नीचे लिखा है, तो क्या 3 के ऊपर कुछ है? नहीं। उमर, क्या 2 नहीं के है। ऊपर कुछ है? नहीं है। लेकिन ऊपर हमें आइडिया है कि दैट 2 3 इज रिपीटिंग। एग्री और नॉट? यस सर। तो देख लो, यहाँ पे लिखा है 2 3, यहाँ पे लिखा है 2 3, मुझे यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 2 3। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, राइट एज अ फ्रैक्शन, जरा शॉर्टकट में बताइएगा प्लीज। बेटा 0.2 रिकरिंग फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा? 1/5। इट्स 2/10। इट्स 2/9। चेक। सर सॉरी, इट्स नॉट रिपीटिंग, माय बैड। मैंने गलती इट्स से टू डॉट नहीं बाई लगाया। टेन ओके, सर नाउ अच्छा, नाउ इट्स 2/9। नाउ इट्स 2/9। नाउ इट्स 2/9। जी साइम। सर मैंने एक पहले सवाल पूछा था कि वो ओरिजिनल सब्ट्रैक्शन कर लेना, आपने क्या जो ओरिजिनल सब्ट्रैक्शन? 112.323 माइनस 1.2323 कुछ था जी, ये वाला, ये जरा पेयर कर लो। यार अभी मैं 4 दफा तो कर चुका हूँ साइम, इसको आप रिकॉर्डिंग में देखो अब दोबारा। अच्छा ठीक। ठीक है, 4 दफा तो ये कर चुका हूँ। 0.2 recurring is 2/9. So let me write this part now. 0.323 and 323, all of them are recurring. So tell me what should be the answer.
323 divided by 999 323. divided by 999. As three numbers are repeating, so three nines will be there. Let's check हमने ठीक किया है कि नहीं. 323 divided by 999. Afreen, check. 323, 323, 323 is repeating or not? Yes, sir. Okay. Afreen, please pay attention and see that it is 0.79. हाँ जी. सर ये What should be the answer? 999 कैसे आया? बेटा ये 3 नंबर, ये शॉर्टकट है. ये शॉर्टकट है, इसीलिए कहता हूँ क्लास टाइम पे ज्वाइन करा करें. 323 टाइम पे इज अ शॉर्टकट. 323 ऑल द डिजिट्स आर रिपीटिंग. पहले तो शॉर्टकट ये है 1000 कि के साथ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई किया. 999 करें. क्या करें? पहले आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया है. नहीं, 323 डिवाइडेड. आपको पता है, ये जरा देखें बेटा प्लीज. यहाँ पे अब प्रॉब्लम आती है ना कि जब आप क्लासेस रेगुलर नहीं लेते तो ये प्रॉब्लम अब आपको होती है. जरा आप देखें बेटा प्लीज, क्योंकि देखें एक डेसिमल के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी क्लास लगानी पड़ गई है. देखें बेटा, अगर ये होता ना 0.323, तो उमर में लिख सकता था 323 डिवाइडेड बाय 1000. ये क्लियर है आपको कि नहीं? यस. दैट वाज इजी. एग्री? बट नाउ इट इज 0.323 and 323 is repeating. Is this clear or not? यस. So it would be, the shortcut is, as from the very first digit it's recurring, so the shortcut is whatever numbers are recurring, divide by that much nines. So there are three numbers recurring, so divide by 999. And can you see that on the right side on the calculator? If I divide 323 by 999, so I'm getting 0.323323 repeating again and again. Agree or not? यस. अब उमर ये बताएं जरा पार्ट सी, व्हाट वुड बी द आंसर? 0.79 रिकरिंग, तो आंसर क्या होगा? 79/99. 99. गुड जॉब. नहीं. जरा चेक करते हैं जरा. 79 डिवाइडेड बाय 99, क्या यही आता है कि नहीं? जरा चेक करो. 0.797979 आ रहा है? यस. सर ये ओके. आखिर में 98 क्यों आ रहा है? ये तो आखिर में कैलकुलेटर की लिमिट है ना. कैलकुलेटर की लिमिट है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 9 डेसिमल प्लेसेस दे सकता है आपको कैलकुलेटर. ठीक है? बस. 10 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेटर नहीं दे सकता, तो इसीलिए वो स्टॉप करेगा इसको. एग्री? सही सही. अच्छा, एक बात बताएं, आरोन कैन यू हियर मी और नॉट? आरोन कैन यू हियर मी और नॉट? Yes, Okay, sir. Ayla. All right. Okay. Arum and Ayla, the question is from both of you. Can you tell me that can I apply a shortcut here? Sir, it would be 79/99. No, can I cannot apply shortcut. Why? Ayla, I cannot apply shortcut as सर इसमें the सिर्फ first 9 रिकरिंग है. digit is not repeating. Agree? Is not. सर Yes. जी बेटा. सर शॉर्टकट हम तभी जो है करेंगे जब हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो रिकरिंग होगा. वो रिकरिंग हो, लेकिन अब यहाँ पे नहीं हो सकता ना. सो नाउ प्रोसीड विद स्टेप्स. इनको we have to proceed with steps now. Proceed with steps. So let x is equals to 0.79999999. देखो मैंने कितने बहुत सारे 9 लिख दिए. एनी प्रॉब्लम और नॉट? नो सर. कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं क्रिएट होनी चाहिए. अब शुड आई मल्टीप्लाई विद 10 और 100 और 1000? 10. 100 जी. क्यों 100? जरा बताएं रामी. 10 सर. के डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं. तो रिपीट कितने हो रहे हैं ये बताओ. डिजिट तो ओहो 50 है. सॉरी सर, 10. सॉरी. हाँ देखो ना, फिर मुझे फिर गुस्सा ना आए तो फिर क्या है. सो मल्टीप्लाई बाय 10 एज वन डिजिट इज रिपीटिंग. देखो बेटा, बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज कदर करो, कदर. वन डिजिट इज रिपीटिंग. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, सो 10x. सो यमुना, इट वुड बी 7.99999. एग्री और नॉट? एग्री और नॉट यस यमुना? सर. So I have to write
all nines above nines. Is this clear? And try to maintain a discipline, okay? That there should be a digit above every digit. Is this clear or not? Yes, sir. Because you can have an error. So my minus is please 10x minus x is 9x. Now from right side, so I have to write decimal first. 9 minus 9 is 0. So 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Don't write all of them. 9 minus 7 is 2. And point is on place. 7 minus 0 is 7. Is this clear, everybody, or not? So x is equals to 7.2 divided by 9. Maya, I hope you can hear me. So should I multiply in the numerator with 10 or denominator with 10 or 100? Sir, both with 10. Very good. Multiplying both numerator and denominator by 10. So it would be 72 by 9. It would be 72 by 90. 72 by. 90. So check 72 divided by 90. So the answer is 4 by 5. It's 0.8. Why? सर, आपने जी, ये 10 के साथ इस वजह से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक डिजिट रिपीट हुआ था। एक डिजिट रिपीट डेसिमल हुआ। के बाद सॉरी एक डिजिट है, इस वजह से। अब जरा मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं कि 0.79 आई कैन नॉट अप्लाई द शॉर्टकट एज द फर्स्ट डिजिट इज नॉट रिपीटिंग। एग्री? आई प्रोसीड विद द स्टेप्स। ठीक है, मैंने स्टेप्स से प्रोसीड किया। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? Yes. यस सर। लेकिन मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 72/90, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.8। ये 0.79 नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, जरा ये बताएं प्लीज। सर, ये कैलकुलेटर ने वो कर दिया ना, कैलकुलेटर वो। ने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। इज दिस क्लियर यस और सर। नॉट? यस सर। सर इज दिस क्लियर और नॉट? सर जी बेटा। सर मेरा वही सवाल है, वो 7.999 माइनस 0.7999 जरा प्रैक्टिकली कर लें। प्रैक्टिकली में, आप प्रैक्टिकली से मुराद ये है कि मैं फॉर एग्जांपल इन सबको मिटा दूं, ऐसे करूं? जी जी, ऑपरेट करें। देखें जी जरा प्लीज। 7.999 तीन नाइन ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और एक्स हमने लिया था, एक्स हमारे पास था 0.799। वहां पे भी थ्री डिजिट्स ले रहा हूँ आफ्टर डेसिमल। एनी प्रॉब्लम? क्यों सर? तीन ले सर रहा हूँ क्योंकि नीचे तीन लिए हुए हैं ना। अगर मैं चार ले लूँ तो मुझे ऊपर एक नाइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ले लूँ चार? तीन मैंने नाइन लिया पांच ले आपने? लिए हैं, मैंने पांच ले लिए हैं। आई पाँच टुक के लिए? फाइव नाउ बिकॉज दिस हम्म, नाइन इज रिपीटिंग। दैट इज माई चॉइस टू टेक फोर और फाइव। जी, तो वो कंसिस्टेंसी तो होगी ना, 10x के साथ 7.999, फिर इधर मैं भी अब आपको पाँच नाइन बताता हो। हूँ। जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना नीचे 0.799, मैंने वहां पे फोर नाइन्स लिए हैं, तो आई रोट टू मोर नाइन्स हियर। एनी प्रॉब्लम? नो। Now, intentionally, I have to add two nines in the above one as well because I'm going to minus it. Agree? ओके। If I don't and I'm allowed to use a calculator, so that is a piece of cake. If I write 7.999 हाँ minus हाँ। 0.7999, and there are one, two, three, four, five nines. Agree? Calculator can do these things. Agree? ओके, या। Calculator आपके लिए ये चीजें कर सकता है। जी। लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट इस चीजों को अंडरस्टैंड जरूर करना है कि आपने जब भी प्रोसेस करना है तो आपको बैलेंस आउट जरूर करना है। ठीक है? हम्म, अंडरस्टूड और नॉट? तो सेम डेसिमल डिजिट्स सेकंड इक्वेशन में भी होंगे जो पहले इक्वेशन में किए हैं? यस, अगर सेकंड में ज्यादा ले लिए हैं तो फर्स्ट वालों को ज्यादा करो। अगर फर्स्ट में ज्यादा लिए हैं तो सेकंड वालों को भी फिर ज्यादा करो। ठीक है? अच्छा सर, मेरा ये था कि मैं नाइन को सेम करना चाहता था, तो पहले में मैंने तीन नाइन लिए थे, दूसरे में भी मैं तीन नाइन लेना चाहता था। 99 नहीं ले सकते, थ्री डेसिमल प्लेसेस ले सकते हैं। देखो, आप जरा साइम इस ठीक है। चीज को क्लियर करें कि यहाँ पे 999 लिखा है, तो मैं अगर ये दो नाइन रिमूव कर दूं तो इट्स द सेम थिंग। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक। आई होप आई एम क्लियर गाइज। जी बिल्कुल। सो दैट सर, इज, या बेटी। सर आपने इसमें पहले 72 डिवाइड बाई 90 किया था ना, लेकिन अगर हम हम्म 7.2 को और डिवाइड कर दे 9 पे तब भी हमारे पास 0.8 आता है ना। एक मिनट सफा करें जरा। 9 - 9 इज 0, 9 - 9 इज 0, 9 - 2 इज 7। एंड पॉइंट अपनी जगह पर और 7 अपनी जगह पर, तो x इज इक्वल टू 7.2/9 आ रहा है। ठीक है? एग्री? तो बेटा मैं अगर 7.2 डिवाइडेड बाई 9 कर दूं ना, डिवाइडेड बाई 9, तो मुझे डेसिमल आ रहा है 4/5। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा?
4/5 आ रहा है सर। And we know that 4 by 5 is 0.8 in the calculator. Agree? It is not 0.79. Agree or not? यस सर, वो तो इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर ने राउंड ऑफ कर दिया ना खुद। Calculator ने round off कर दिया, और it usually happens if the last digit repeating is 9. Okay? ओके सर, लेकिन ये तो तो अगर सर मतलब अगर हम पेपर। इसको मल्टीप्लाई पेपर ना पे आते करें, हैं जी बेटा। इसके बाद इस स्टेप के बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था ना 10 के साथ, और अगर हम हाँ, इसको तो वही मल्टीप्लाई वही ना वही करें बात तो है ना, करें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना बेटा। 72/9 इट इज इक्विवेलेंट टू 72/90। एग्री? सर यस सर। सर सर अभी आप एक चीज जरा देखें, जरा मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे जरा इसको अंडरस्टैंड करें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बेटा ये चीज अंडरस्टैंड करें, ये मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहता है आपको कि 2/3, सो राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज 2/3। ऐसी फ्रैक्शन लिखो कि दोनों के जवाब सेम आए। So first of all, you have one numerator here. So multiply the numerator with any number. I'm multiplying with 4. So multiply the denominator with the same number. Okay. So 2 fours are 8 and 3 fours are 12. Now please pay attention. If I write in the calculator 2/3 equals, I get 2/3. Any problem? And if I 8 divided by 12, I'm also getting 2/3. Can you see that? So these two in maths, they are what? They are equivalent fractions. They are what? Equivalent fractions. मैथ्स में इनको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। सर ये तो मतलब मैथ्स का रूल है ना कि इज इक्वल टू के एक साइड पे अगर हमें कोई ऑपरेशन करना होगा तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी वही ऑपरेशन करना होगा। अच्छा, अभी इसके बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो जरा समझ डालें थोड़ा सा। आगे इक्वेशंस के अलजेब्रा का चैप्टर आ रहा है, तो उसमें तो ये एक्सप्लेन होगा। मैथ्स में बेटा इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू। ओके, इज इक्वल्स टू, ये याद रखें। इज इक्वल्स टू, इट इज टू इज लाइक अ वॉल। इक्वल्स टू इज लाइक अ wall. It is like a wall. If plus is happening here, agree? And if you want to move out here, so it would be minus. And if multiplication is happening here, if you want to move out, it would be a division. Agree or not? Agree or not? यस सर, एग्री। And we all are familiar. ये तो अब ऐसी जस्ट जनरल डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जस्ट एक याद रखें, आर यू गाइज आर फेमिलियर विद व्हाट अ वेइंग स्केल इज? एग्री? क्या आपको पता है वेइंग स्केल क्या होता है? नो सर। आफरीन, अच्छा हाँ जी जी। वेइंग स्केल इसी को कहते हैं ना? कोई और नाम है इसका साइम? नहीं नहीं सर, कंफ्यूज हो गया अगर था। है तो बता दो मुझे याद प्लीज आ जरा। गया। बेटा फॉर एग्जांपल, एंड ये क्वेश्चन वदान ने पूछा है, यू गाइस मस्ट थैंक हिम, दैट दिस साइड इज फॉर एग्जांपल 10 kg and this side is for example 10 kg. In math we follow this is math, we have to balance things. What? We have to balance things. बैलेंस For थिंग्स। हमें अगर अगर हमें किसी चीज को, फॉर एग्जांपल यमुना, अगर ये 7.2 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9 पे। एग्री? और यमुना सिर्फ मैं न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 72/9। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। अब देखो यमुना 7.2, जरा मेरा बेटा गौर करना। अच्छा, 7.2 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4/5। ठीक है? यस और सर। 4/5 का मतलब है 0.8। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन जब मैं 72/9 करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8। 0.8 नहीं, बिग डिफरेंस। एग्री? यस सर। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई नहीं किया। एग्री? यस सर, तो मतलब हमें बैलेंस करना है, हमें न्यूमरेटर को बैलेंस भी और करना है। अगर आप न्यूमरेटर में 10 ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 10 ऐड करो फिर। एग्री? सर मतलब हम क्वेश्चन को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं लेकिन दोनों साइड को बैलेंस करना है। दोनों साइड को बैलेंस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, गुड जॉब। थैंक यू सर। चलें आगे चलते हैं जी। टाइम कितना रह गया जरा ये भी बता दें साथ साथ। 5 मिनट्स 5 सर। ओहो यार, अपनों को तो बड़ी लंबी डिस्कशन कर दिया आज। चलें कोई बात नहीं, प्रोडक्टिव ही है। परसेंटेजेस इंट्रोड्यूस करता हूँ, बाकी फिर कल करा दूंगा।
परसेंटेजेस कहते हैं बेटा पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। कल हमारी क्लास होगी, अच्छा, क्योंकि कल जो मैंने क्लास नहीं लिया था मैं उसको कॉम्पनसेट कर दूंगा। पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द टिपिकल फॉर्मूला, आज तक स्कूल वाले आपको यही पढ़ाते रहे हैं। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? यस सर। Now we need to understand that percentage means out of 100. Percentage means out of 100. Laluna, do we have Yes, any sir. do we have any benefit to have something out of 100? Yes or no? Can you please clarify this thing or not? यस सर, क्योंकि परसेंट तो टोटल 100 ही होता है ना। Okay. अब ये 100 क्यों लिया गया है मैथ्स में? We need to discuss this thing. Why percentage is always 100? Because math wanted one thing. मैथ को हमेशा ये चीज चाहिए थी कि हम एक ऐसा स्केल बनाएं जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को रैंक कर सकें। एग्री? डिफरेंट क्वांटिटीज को रैंक करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 एंड वी हैव सेकंड स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर 2। रामीन, जी सर। मेरा बेटा यू गॉट 16 आउट ऑफ 20। एग्री? एग्री? जी। एंड अनदर स्टूडेंट ही गॉट 7 आउट ऑफ 10। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नाउ हु परफॉर्म बेटर, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2? सर कैलकुलेट करके बताओ। इक्वल है। ओके, नहीं सो सर, लेट्स चेक। स्टूडेंट 2। लेट्स चेक दैट। Beta 16 is the part out of total. Let's times it with 100. 20 ones are 20. 20 times 5 is 100. 16 times 5. Mental math से कैसे करते हैं? मैं 16 को बेटा 10 plus 6 कर देता हूँ। Any problem? Any problem? नो सर। Okay. So 5 tens are 50 and 6 fives are 30. So it is 80%. It is what? वो 80%. दूसरा And वाला 70 आता है। okay, so 7 divided by 10, part divided by total, multiply by 100, 0, 0 cancel. 7 tens are 70%. Agree or not? Now, Ramin, student number 1, he got 16 out of 20. Agree? He got 4 less from the total. Can you see that? This 4 less than the total, then the total is better. Yes or no? Then 3 less than the total. Afreen got the idea or not? Then the Afreen got the idea or not? Arom, Mujgan. Yes. All right. So now try to understand that the first student, he scored 4 marks less than the total marks, but he is still better than the second student who scored only 3 less than total. Agree or not? अगर यस। वदान मैथ्स में अगर ये चीज ना होती तो हम हमेशा इसी डाउट में रहते कि यार ये तो स्टूडेंट नंबर 2 ने ज्यादा नंबर लिए हैं। एग्री? जी सर। जबकि स्टूडेंट नंबर 1 की परफॉर्मेंस स्टूडेंट नंबर 2 से बहुत ज्यादा अच्छी है। एग्री? क्योंकि 70% और 80% में 10% का फर्क है। एग्री? यस सर। इंशाल्लाह वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो। काफी मजा आया है क्लास का, एंजॉयड अ लॉट। लेट मी मार्क द अटेंडेंस, प्लीज डू नॉट लीव द रूम। सो लेट मी मार्क द अटेंडेंस। Okay, I had few more participants in the class. I don't know what are their names. Can you please look and just tell me that who left before time, that who was in the class? सर माया। हाँ, माया 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 नहीं है अभी इस टाइम पे। और चले मैं देख लूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जाएं जी आप लोगों की जिनकी केमिस्ट्री की क्लास है। थैंक यू सो मच। आई एम शेयरिंग द नोट्स एंड आई विल बी शेयरिंग a worksheet on recurring decimal fractions. Do practice that, okay? सर ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you.
लास्ट। सर आप वो जो लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग है आप वो फिर चेक कर लें। अच्छा, आप अभी, आपकी तो केमिस्ट्री नहीं है ना? नहीं नहीं सर। अच्छा, फिर आप अभी 1 मिनट ज़रा क्लास में रुको, ठीक है? सर सर जी बेटा। फिर मुझे एक सवाल समझा देंगे प्लीज? बोलना। सर इस क्लास से नहीं है, आज वाले लेक्चर से नहीं है जो मैंने आपको कल सवाल नहीं भेजा था रात को?